everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi. Today we are going to discuss worksheet number 23, subject science and class 10th. With the continuation of the topic acid, bases and salts, we are going to discuss today some pH scale and more about acid, base and salt. You can see here if an strong acid and strong base. We have already discussed that acid have two types, strong and weak. So strong acid, strong base, weak acid, weak bases as there, and we have discussed about their name also in our previous worksheet. So when a strong acid and a strong basis reacts, what happened? It forms a neutral salt. Here is the chemical formula also. HCl is a strong acid which is react with NaOH. A strong base is give NaCl, which is a neutral salt, and water. So you have known that this kind of reaction is also known as a neutralization reaction. Second one, when a strong acid and a weak base react, then is give a acidic salt. So you can find that HCl plus NH4OH, ammonium hydroxide, is a weak base, and you get NH4Cl. This is an acidic salt. Salt which is have a acidic nature, and in that case pH will be less than 7 because it is acidic, and in the first case pH was equals to 7 because we have discussed this is a neutralization reaction, so pH will be equals to 7, neutral. Third one is when a strong base and a weak acid is react, then it give a basic salt. So 2NaOH is a strong base and H2CO3 react with, and you get Na2CO3, which is a basic salt. So because it is a basic salt, therefore pH will be greater than 7, because in the pH scale for the basic nature pH should be greater than 7. So very nice. Now let us come to the rock salt. We have already discussed about, we know about rock salt. हम घर में भी यूज़ करते हैं rock salt का. तो what is this? Rock salt is a normal form of crystallized mineral, it which is known as a rock salt. इसका फॉर्मूला अगर अगेन सॉल्ट है तो NaCl होता है. ठीक है. नाउ केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जो होते हैं इसका केमिकल फॉर्म, कई सारे केमिकल फॉर्म है, मेन NaCl में होता है. तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप अलग अलग इसका प्लीज़ केमिकल फार्मूला ज़रूर लर्न कीजिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ NaOH. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. बेकिंग सोडा NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट it is called, and its formula is by baking soda NaHCO3, which you used in your household for the baking and all. Question number 4, part 4 is your washing soda. Washing soda, yes, this is same soda we use for the washing and all. So and the chemical formula is Na2CO3 plus 10H2O. So water particles are also involved in a washing soda's crystals are there, fine. So these are some very important major chemical formula of some chemicals, fine. So MCQs में और या 1 मार्कर में भी पूछता है. तो ये आपके लिखा है सॉल्ट है, और ये कैथोड एनोड, और ये आपका NaOH इज़ अ बेस ओनली. सो यू कैन सी दैट कि जब कैथोड कैसे ये एसिड बना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना फॉर्म होता है. ये आपका फ्यूल मार्जिन अमोनियम फॉर फर्टिलाइज़र H2 का है. H2 का यूज़ बता रहा है, हम आप यहाँ पे बताएंगे कैसे ये बना है, और ये ब्लीच बनता है इन दोनों के हेल्प से. ठीक है, वी विल डिस्कस इज नाउ ओनली. यहाँ देखिए, यहाँ इसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज़ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं. ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड जो होता है एक्वस सोल्यूशन होता है ब्राइन. तो इट डिकम्पोज फ्रॉम द वाटर. एक सॉल्ट का कंसनट्रेशन, सॉल्ट सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं. तो इस सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है एंड फॉर्म NaOH, और NaOH फॉर्म करता है. इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. बहुत ध्यान से नाम याद रखिएगा. दैट इज़ नोन एज अ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. क्लियर? और यू कैन सी इट इज़ एक्सप्लेन टू द केमिकल फार्मूला ऑल्सो दैट 2NaCl plus 2H2O when react it gives NaOH, chlorine and hydrogen.
So this is very important formula and this process is known as a chlor-alkali process. So अगर जब ये क्लोर बनता है तो ये जब पास किया जाता है तो एनोड पे क्या कलेक्ट होता है, क्लोरीन गैस. एट कैथोड क्या कलेक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस. और नियर कैथोड NaOH सोल्यूशन फॉर्म्ड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथोड पे कौन सा गैस है, एनोड पे कौन सा गैस है ड्यूरिंग द क्लोर-एल्कलाइ प्रोसेस. फाइन. इनके यूजेस भी मेंशन है जो यहाँ पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया था. हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, फ्यूल आर्टिफिशियल बटर बनाने में इसका यूज़ होता है. और क्लोरीन का यूज़ पता है वाटर ट्रीटमेंट में, सफा बटर डिसइंफेक्ट करने के लिए. PVC और CFCS में यूज़ होता है. HCl का यूज़ है क्लीनिंग स्टील्स में और मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. व्हाट अबाउट NaOH, दिस इज योर बेस, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं. वो होता है डीग्रीजिंग मेटल को डिग्रीज करने के लिए सोप एंड पेपर मेकिंग में यूज़ होता है. और रिएक्शन दिया है क्लोरीन के साथ, जब NaOH रिएक्ट करता है तो वो क्या बनता है, ब्लीच बनता है. और ब्लीच का यूज़ कहाँ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस. ब्लीच को तो पता ही आपको, ब्लीच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ब्लीच कपड़े को ब्लीच करने में, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में और हाउस होल्ड की किसी ब्लीचिंग प्रोसेस में. ठीक है. और इसी को यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है. ये कैथोड, ये एनोड पे क्लोरीन बनता है. ठीक है. तो इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है. लेट अस डू. व्हाट इज़ अ क्लोर-एल्कलाइ प्रोसेस, व्हाई इट इज़ कॉल्ड. अभी आपने देखा कि क्लोर-एल्कलाइ प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि when an electricity passes through the aqueous solution of NaCl is decomposed, और ये क्लोर-एल्कलाइ गैस प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. सेकेंड इज दैट व्हाट इज़ अ ब्राइम सोल्यूशन. हमने ऊपर अभी पढ़ा ब्राइम सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, एक्वस मतलब वाटर एंड सॉल्ट का जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है उसको हम ब्राइम सोल्यूशन कहते हैं. तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज अ ब्राइम सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच गैस इज लिबरेट एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर-एल्कलाइ प्रोसेस, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ द गैस. तो एनोड, मैंने आपको बताया एनोड और कैथोड पे 2 अलग अलग गैस आपके क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं. तो एनोड पे जो होते हैं दैट इज़ योर क्लोरीन गैस. सो इसके यूजेस पूछ रहे हैं, तो इसका यूजेस है 2 यूजेस आर हियर ओनली, वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFCS में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नेम द केमिकल यूजेस इन सोप इन वाटर मेकिंग. वाटर मेकिंग और सोप में कौन सा केमिकल यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला भी बताइए. तो ये NaOH यूज़ होता है. और एक केमिकल फार्मूला, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीच बनाता है. ठीक है. ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट एनी 2 यूज ऑफ H2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ लिखना है. तो यू कैन सी दैट यूजेस के सारे यहाँ पे हैं. हाइड्रोजन के यूजेस हो गए फ्यूल एंड आर्टिफिशियल बटर में, और HCl का हो गया क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन में. ठीक है. So you can get these answer from this worksheet only. It's a very nice worksheet, very important. So hope you have liked it. So keep watching and keep sharing. Thank you all.